السلام علیکم ناظرین، روشن خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کا صوم کو قیام کیا، یعنی رات کو تراویح پڑھی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ بخاری و مسلم۔ آگے بڑھنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ اقلیتی اقامتی اسکول اقلیتوں کے لیے شاندار تحفہ، اس سے استفادہ کریں، ضلع کلکٹر کا مشورہ۔ انہوں نے سائنس فیئر پروگرام کا کیا افتتاح۔ پولیس کی چوکسی، کئی مقامات پر چیک پوسٹ۔ نصر آباد میں پوچارام سرینواس ریڈی کے قافلے کی تلاشی، پولیس کے رویے کی زبردست ستائش۔ ریاستی ٹی آر ایس حکومت نے اقلیتوں کے لیے جو کام کیے ہیں اس کی ماضی میں نظیر نہیں ملتی، انقلابی اسکیمات کو روشناس کروایا گیا۔ اقلیتوں کے اجلاس سے باجرٹی گووردھن و دیگر کا خطاب۔ کیا عوام کو بروقت سرٹیفکیٹس و دیگر سہولتیں مل رہی ہے؟ ساؤتھ تحصیل آفس میں عملے سے ضلع کلکٹر کا سوال، انہوں نے ریکارڈز کا لیا جائزہ، قبل ازیں پولنگ مراکز کا معائنہ بھی کیا۔ اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ اقلیتی اقامتی اسکول دھرمارام بی میں بین الاضلاعی سائنس فیئر کا اہتمام، ضلع کلکٹر نے شمع جلا کر افتتاح انجام دیا۔ انہوں نے ان اقامتی اسکولوں کو اقلیتوں کے لیے بامقصد قرار دیا اور استفادہ کرنے کا مشورہ دیا۔ ڈچپلی منڈل کے موضع دھرمارام بی میں واقع اقلیتی اقامتی اسکول میں سائنس فیئر پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس پروگرام میں ضلع کلکٹر رام موہن راؤ نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس بین الاضلاعی سائنس فیئر میں ضلع نظام آباد کے علاوہ میدک اور عادل آباد کے اقامتی اسکولوں کے 350 طلباء نے حصہ لیا۔ اس 2 روزہ سائنس فیئر کا ضلع کلکٹر نے شمع جلا کر افتتاح انجام دیا۔ اس کے بعد انہوں نے امبیڈکر کی تصویر پر پھول نچھاور کیے۔ ضلع کلکٹر نے کہا کہ سائنس فیئر کا اہتمام ایک اچھا طریقہ کار ہے، اس سے طلباء میں اختراعی صلاحیتیں نمودار ہوتی ہے اور طلباء کا ذہن تخلیق کے سمت گامزن ہوتا ہے اور کچھ نیا کرنے کا شوق ان طلباء کو مستقبل میں کسی نہ کسی شعبے کا موجد بننے کا جذبہ پروان چڑھاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دور حاضر انتہائی جدید ٹیکنالوجی سے وابستہ ہے، لہٰذا طلباء کو بھی اس سے ہم آہنگ کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ کلکٹر نے کہا کہ اقلیتی اقامتی اسکولز کا قیام حکومت کا ایک شاندار اقدام ہے۔ یہاں طلباء کو خانگی طرز پر تعلیم و سہولتیں فراہم کی جا رہی ہے اور ایک طالب علم پر 1,25,000 روپے فنڈ خرچ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اقلیتی طبقات سے استفادہ کی خواہش کی۔ సైన్స్ ఫేర్ లాగా కాకుండా దీని నుంచి స్ఫూర్తి పొంది మిగతా విద్యార్థులే కానివ్వండి, మామూలు ప్రజలే కానివ్వండి, టీచర్సే కానివ్వండి, గైడ్సే కానివ్వండి, ఇతరత్ర ఎవరైనా కూడా చూసిన దాన్ని చూసి అక్కడే మర్చిపోవడం కాకుండా దాన్ని మనకు దైనందిన జీవితంలో ఎలా ఉపయోగపడుతుందని దాన్ని అర్థం చేసుకొని ముందు ఇలాగే ముందు సైన్స్ ఫేర్ జరిగినా కానీ వాటిలో ఇదే విధంగా ఇంకాస్త మెరుగైన పద్ధతులతో మనకు నిజ జీవితంలో ఉపయోగపడే ప్రయోగాలను చేయించండి, ఎగ్జిబిట్స్ని కూడా ప్రదర్శించండి। స్టూడెంట్సే కాకుండా చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఉన్న ప్రజలు కానీ గ్రామస్తులు కానీ వారందరినీ కూడా ఇన్వైట్ చేసి వారు కూడా చూసి స్ఫూర్తి పొంది దీన్ని దైనందిన జీవితంలో వాడుకునేట్టుగా మీరందరూ కూడా ప్రయత్నించాలి। حلقہ اسمبلی نظام آباد رورل میں اقلیتی طبقے کا اہم اجلاس، باجرٹی گووردھن ٹی.آر.ایس امیدوار کی شرکت۔ اقلیتی طبقے کی اکثریت نے ان کو تائید کا تیقن دیا۔ اس موقع پر باجرٹی گووردھن نے اقلیتی طبقے کے لیے کی گئی کارکردگی کی تفصیلات پیش کی اور جلسے کی کارروائی نوید اقبال نے چلائی۔ نظام آباد رورل حلقہ اسمبلی کی حدود میں واقع ایک فنکشن ہال میں ٹی.آر.ایس اقلیتی قائدین کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں اس حلقہ اسمبلی کے تمام منڈلوں کی مساجد کمیٹیوں کے صدور
व अराकीन के अलावा आयमा व मौज़नीन को मदऊ किया गया था और तमाम ने शिरकत। इस प्रोग्राम में हल्का असम्बली निज़ामाबाद रूरल के तमाम मंडलों के सुदूर व अराकीन की बड़ी तादाद शरीक थी। इस इजलास की कार्रवाई जिला सदर अक़लियती सेल TRS नवीद इकबाल ने चलाई। उन्होंने बताया कि मंडल अक़लियती क़ायदीन की ख्वाहिश पर इस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया ताकि TRS पार्टी के लिए अक़लियती तायद को हमवार किया जा सके। नवीद इकबाल ने कहा कि हल्का असम्बली निज़ामाबाद रूरल के TRS उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन जिला निज़ामाबाद के एक मारूफ कायद माने जाते हैं और उनकी सेकुलर शख्सियत से सभी लोग मुतासिर है, लिहाजा हमेशा ही अक़लियती व मुस्लिम तबक़ात बाजरेड्डी गोवर्धन की हिमायत के लिए तैयार रहती है। इस बार भी मुस्लिम तबक़े की तायद बाजरेड्डी गोवर्धन को हासिल है। नवीद इकबाल ने कहा कि जब भी मुस्लिम तबक़े को हसास सूरत हाल का सामना हुआ तब बाजरेड्डी गोवर्धन ने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया और मसाइल की यकसवी करवाई। बिलखुसूस औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए MP कविता और बाजरेड्डी गोवर्धन की खिदमात को ख़त्ई फरामोश नहीं किया जा सकता। नवीद इकबाल ने जोर देकर कहा कि बाजरेड्डी गोवर्धन की कामयाबी सेकुलर तबके की कामयाबी मानी जाएगी और उससे रियासत तेलंगाना की तरक्की की राहें हमवार होगी और गरीब तबकात के फलाह बहबूद के काम करवाए जा सकेंगे। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए TRS उम्मीदवार निज़ामाबाद रूरल बाजरेड्डी गोवर्धन ने कहा कि वो खिदमत का जज्बा रखते हैं और इंसानियत की खिदमत को अवलिन तरजीह देते हैं, लिहाजा कई साल सियासी जिंदगी में उन पर कभी भी जानिबदारी या तासुबियत का इल्ज़ाम नहीं लगा और ना ही कभी मुस्तकबिल में ऐसा मुमकिन होगा। उन्होंने कहा कि हर शख्स इस मुल्क का शहरी है और दस्तूर में तमाम तबकात के लोगों को एकसा हुकूक व इंसाफ हासिल है, लिहाजा वो बिला लिहाज मजहब व मिल्लत अपनी खिदमत को जारी रखते हैं। बाजरेड्डी गोवर्धन के मुस्लिम तबके के लिए करवाए गए तरक्याती कामों की तफसीलात पेश की और कहा कि अभी मज़ीद काम करवाने हैं। उन्होंने मुस्लिम तबके से उनके हक में वोट देने की अपील की। VG गौड़ ने बाजरेड्डी गोवर्धन को एक बेबाक व बेलोस और अवाम के लिए जीने वाला कायद करार दिया। कहा कि बाजरेड्डी गोवर्धन की जीत अवाम की जीत होगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने अवाम की फलाह बहबूद के लिए मुतादिद स्कीमात को रोशनास करवाया है और बाजरेड्डी गोवर्धन ने उन स्कीमात पर अपने हल्के में मौसर अमल आवारी करवाई है। ऐसे अलीम रेडको चेयरमैन ने कहा कि आज मुस्लिम तबके को TRS की तायद करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुल्क में पहली बार किसी पार्टी ने खुलकर मुसलमानों के लिए काम किया है। मुसलमानों को तालीमी पसमानदगी से निकालने के लिए 204 अक़ामती स्कूलों का क़याम रियासती हुकूमत का नाकाबिल फरामोश कारनामा है। उसी तरह शादी मुबारक, आसरा वजीफ़ा और 6 किलो फी कस चावल की स्कीम को ख़त्ई नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस इजलास से रियासती सेक्रेटरी तारिक अंसारी के अलावा मंडल क़ायदीन ने भी मुखातिब किया। इस प्रोग्राम के अहम शुरका में मंडल क़ायदीन मोहम्मद जिलानी, मोहम्मद आज़म, शेख हुसैन, रुस्तम खान, मोहम्मद फैसल, सैयद महमूद, मोहम्मद मुस्तफ़ा व दीगर शामिल थे। कांग्रेस की हुकूमत में भी हो या तेलुगुदेशम पार्टी की हुकूमत में हो, कांग्रेस हुकूमत 40 साल देख चुके हैं और 20 साल तेलंगाना के तेलुगुदेशम पार्टी के देख चुके हैं। वो रियासतों में माइनॉरिटी लोगों को कभी भी हो इतने मसाइल सामने आ रहे हैं, सब गरीबी का कब्जा हो रहे हैं,
मुंतशिर हुए अवाम के दरमियान बेलोर खिदमत करते हुए सबके हदील अजीज बने शख्सियत और कोई भेदभाव नहीं इस शख्सियत में, और खासतौर पर जो है हमारे मुसलमानों के दरमियान रहने वाला एक अजीब शख्सियत इस हफ्ते का उम्मीदवार जनाब बाजी अली गोवर साहब यहाँ तशरीफ लाए हैं, आप हमको वक्त दिए हैं और आप लोगों को जो थोड़ी सी ताक़ीर हुई उसके लिए भी मैं उनकी जानिब से मैं माफ़ी चाहता हूँ। दरअसल ज़्यादा वक्त ना लेते हुए फिर एक बार मैं आप लोगों के दरमियान में हम ज़रूर आएंगे, क्योंकि हमको ये वक्त का बेहतरीन तकाज़ा है। हमको जो है मुसलमान का जो है बेहतरीन मुसलमान को जो है कि हमेशा फैसला वो मुसलमान की ओर हमेशा फैसला वो देते हैं। एड़पल्ली पुलिस स्टेशन की हुदूद में पुलिस की तलाशी मुहिम कई मुकामात पर रकम ले जाते हुए लोगों को गिरफ्तार किया गया और रकम जब्त कर ली गई। एसआई रामा नायडू ने कहा कि रकम की मुंतकली के मौके पर मिल्कियत का ठोस सबूत या रसीद साथ रखें, बसूरत दिगर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। एड़पल्ली मंडल की हुदूद में पुलिस की तनकीद जारी है। कल रात भी पुलिस ने अपनी तलाशी मुहिम जारी रखी। इस मौके पर एक कार में सफर करने वाले 2 अफराद के कब्जे से तलाशी के दौरान 2,95,000 रुपये की रकम बरामद हुई। पूछताछ पर ये 2 अफराद इस रकम के ताल्लुक से कोई मुतमईन करने वाला जवाब ना दे सके और ना ही उनके पास से उनका कोई शिनाख्तनामा मिला और ना ही उन पैसों के ताल्लुक से उनके पास कोई ऐसा ठोस सबूत हासिल नहीं हुआ जिससे इस रकम को उनकी कानूनी मिल्कियत माना जा सके। ये तफसीलात एड़पल्ली सब इंस्पेक्टर रामा नायडू ने बताई और कहा कि इंतखाबात के दौरान गैर महसूब रकम के लेन देन की इत्तलात है। गिरफ्तार शुदगान के पास से कोई ऐसी तस्दीक नहीं मिली जिससे इस रकम को महसूब रकम माना जा सके। एसआई ने मजीद बताया कि तलाशी के दौरान मौजा जमलम में भी एक बोलेरो कार में सफ़र करने वाले शख्स के कब्जे से गैर महसूब 1 लाख की रकम जब्त की गई। उसी तरह एड़पल्ली के कस्तूरबा गांधी स्कूल के सामने से भी तलाशी मुहिम के दौरान 1,95,000 रुपये नकद रकम जब्त कर ली गई। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में राय दहिंदों को रुझाने के लिए रकम की तकसीम की शिकायत आम है, लिहाजा कोई भी शख्स अपनी रकम ले जाते वक्त अपने साथ महसूब रकम से मुतालिक रसीद रखे, वरना सरमाया जब्त होगा और मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। ఎడపల్లి మండలంలో జమలం గేట్ దగ్గర వెహికల్ చెకింగ్ చేస్తుండగా వెహికల్ నుంచి ఒకటి బొలెరో వెహికల్ బొలెరో వెహికల్లో తీసుకెళ్తున్న ₹1,00,000 సీజ్ చేయడం జరిగింది. దానికి సరైన ఆధారాలు చూపించినందున అటువంటి అమౌంట్ని సీజ్ చేసి ఎదురైనందుకు డిపాజిట్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా కస్తూర్బా స్కూల్ ముందు కూడా వాహనాలు తనిఖీ చేస్తున్నప్పుడు శాంత్రో కారులో తీసుకొస్తున్న ₹1,95,000 మలయ శ్రీనాథ్ అతని నుంచి జైతాపూర్ విలేజ్ చెందిన శ్రీనాథ్ నుంచి जिला कलेक्टर ने पोलिंग मराकज़ का जायजा लिया और राय दहिंदों को फराहम की जाने वाली सहूलतों से मुताल्लिक इस्तफसार किया, आवाम से मुलाकात की और वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने का मशवरा दिया। बाद साउथ तहसील ऑफिस की तनक़ीद की और रिकॉर्ड्स का जायजा लिया। जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए शहर में कायम किए जाने वाले मराकज़ राय दही का जायजा लिया। इस मौके पर उनके हमरा रिटर्निंग ऑफिसर जॉन सैमसन भी मौजूद थे। जिला कलेक्टर ने उन मराकज़ का तफसीली जायजा लेते हुए साथ ही करीबी राय दहिंदों से मुलाकात करते हुए उनके करीबी पोलिंग मराकज़ के ताल्लुक से पूछा। साथ ही फहरिस्त राय दहिंदगान में खारिजशुदा या नए नामों को दर्ज करवा लेने का भी मशवरा दिया। साथ ही जिला कलेक्टर ने बूथ लेवल सुपरवाइजर से नामों के इंदराज से मुतालिक तफसीलात मालूम की। जिला कलेक्टर उसके बाद अचानक ही तहसील ऑफिस साउथ का दौरा किया और उसकी तनक़ीद की और रिकॉर्ड्स का सख्ती से जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने ज़ेरे इल्तिवा सर्टिफिकेट्स के ताल्लुक से अमले से सख्ती से बास पुरसी की और ताख़ीर की वजूहात से मुतालिक इस्तफसार किया, जिस पर अमले ने बताया कि वो बर वक्त सर्टिफिकेट्स व दीगर कामों की अंजामदही कर रहा है। तब जिला कलेक्टर ने
संजीदगी से रजिस्टर्स का जायजा लिया और बर वक्त कामों की अंजामदेही की हिदायत दी और साथ ही तहसीलदार विष्णु सागर को हिदायत दी कि वो तहसील ऑफिस में सफाई पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करें। इंतखाबी माहौल गर्म होता जा रहा है, रकमों का हेर फेर मुमकिन है, लिहाजा पुलिस ने चौकसी इख्तियार कर ली। कई मुकामात पर पुलिस चेक पोस्ट कायम किए गए। नसरुल्लाबाद चेक पोस्ट पर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के काफिले की तमाम गाड़ियों की तलाशी ली गई। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक सख्ती से नाफिज कर दिया गया है। इंतखाबी क़वायद के खिलाफ वर्जी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की गर्ज से जिले भर में कई मुकामात पर चेक पोस्ट कायम किए गए हैं, जहां से गुजरने वाली हर गाड़ी की बारीक बीनी से तलाशी ली जा रही है। पुलिस ने अपनी कार्रवाई को लेकर संजीदा तरीका इख्तियार किया और आज पुलिस ने साबित कर दिया कि कानून हर हाल में बालातर होता है और किसी भी शख्स को कानून पर फौकियत नहीं दी जा सकती। वन्नी मंडल के मौजा नसरुल्लाबाद में भी एक ऐसा ही चेक पोस्ट कायम किया गया है, जहां पर पुलिस का अमला चौकस से और सख्ती से गाड़ियों की तलाशी ले रहा है। इस तलाशी मुहिम के दौरान ही अचानक इस चेक पोस्ट पर साबिक रियासती वजीर व 4 उम्मीदवार पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का काफिला पहुंचा। इस काफिले को भी पुलिस ने रोक लिया और काफिले में शामिल तमाम गाड़ियों की तलाशी ली। इस मौके पर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने ताउन का शानदार मुजाहिरा किया और अपनी गाड़ी से उतरकर एक जानिब खड़े हो गए और पुलिस को आज़ादी से काम करने का पूरा मौका फराहम किया। बगैर तलाशी के बाद पुलिस ने काफिले को आगे जाने की इजाज़त दी। मुकामी अवाम ने पुलिस और पोचाराम दोनों के ही शानदार रवैये की भरपूर सत्ताइश की। हर शहरी के कानूनी हुकूक क्या है और उसको कानून से क्या तहफ़्फ़ुज़ और मदद हासिल होती है, उसकी मुकम्मल मालूमात हर शहरी को होनी चाहिए। बिलखुसूस कमसिन लड़के लड़कियों को भी उनके कानूनी हुकूक से वाकिफ़ करवाना लाजमी होता है। कानूनी शौर बेदारी प्रोग्राम से सीनियर जज का खिताब। कोटगली निजामाबाद में वाक़े गर्ल्स हाई स्कूल में यौम वकला के मौके पर बार कौंसिल निजामाबाद, रोटरी क्लब और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की जानिब से तलबा के लिए कानूनी शौर बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में कानूनदानों ने तलबा को कानून की अहमियत और कानूनी इमदाद से मुताल्लिक़ मालूमात फराहम की। इस प्रोग्राम में ज़िले के सीनियर जज SVP सूर्य चंद्रकला ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और अपने खिताब में कहा कि कानून क्या है और शहरियों को क्या तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है और शहरियों के हुकूक क्या है, उसकी तमाम शहरियों के साथ तलबा व तालिबात को भी मालूमात होनी चाहिए। इस मौके पर बच्चों के खून के मुआयने का कैंप भी मुनक़िद हुआ। కాబట్టి మీరు చిన్నారులందరూ కూడా ఈ చిన్నతనం నుంచే సేవాభావాన్ని అలవర్చుకోవాలి। ఈ న్యాయ సేవాధికార సంస్థ ద్వారా కూడా మేము ఇవాళ 9th నుంచి ఒక 18వ తారీఖు వరకు కూడా ఇంటింటికి అంటే జస్టిస్ ఎట్ యువర్ డోర్ స్టెప్ అంటే ఇంటింటికి కూడా వాళ్ళకి న్యాయ సేవ ఉందనే ఒక విషయాన్ని, వాళ్ళకి ఏ విధంగా న్యాయ సహాయం అందుతుంది అంటే వాళ్ళకి కనీసం ఇలాంటి చట్టం ఉంది, వాళ్ళ రైట్స్ వైలేట్ అవుతున్నాయని కూడా తెలియని వాళ్ళందరికీ కూడా వాళ్ళ చట్టాలు కానీ आतिशज़दगी या हादसात के मौके पर खौफ और बकलाहट की वजह से इंसान को ज़्यादा नुकसान होता है, लिहाजा ऐसे मौक़ों पर जहन पर काबू रखा जाए और बचाव के तरीक़ों पर गौर किया जाए और फिर अमल, उस तरह अपनी और दूसरों की ज़िंदगियाँ बचाई जा सकती है। फायर ब्रिगेड ओहदेदार रंजित कुमार का शौर बेदारी प्रोग्राम में खिताब। रेलवे स्टेशन निजामाबाद में महकमा फायर ब्रिगेड की जानिब से अवामी शौर बेदारी के लिए एक खुसूसी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया और इस मौके पर अवाम और रेलवे मुलाजिमीन को ये बात समझाई गई कि आतिशज़दगी की सूरत में मोहतात तरीक़ा क्या हो जिससे आग से बचा जा सकता है और नुकसानात को भी कम से कम किया जा सकता है। फायर ब्रिगेड ओहदेदार रंजित कुमार ने अपने खिताब में कहा कि आतिशज़दगी के मौके पर आग का शिकार होने वाले बेशतर अफराद बौखलाहट की वजह से आग का शिकार बनते हैं। रंजीत कुमार ने कहा कि आतिशज़दगी के मौके पर जहन को ठंडा रखने और फुर्ती व हिम्मत के साथ अपनी और अपनों की जान बचाने और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मनसूबा बंदी करने की ज़रूरत होती है। खौफ और बौखलाहट में मज़ीद ख़तरात बढ़ जाते हैं और नुकसान ज़्यादा पेश आ सकते हैं।
इस प्रोग्राम में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के मुलाजिमीन के अलावा सिविल पुलिस मुलाजिमीन और मुसाफिरीन की बड़ी तादाद शरीक थी। रंजित कुमार ने कहा कि ओहदेदारान पर ज़ायद जिम्मेदारियां आयद रहती है। उनको अपनी जान के साथ साथ दूसरों की जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ की फ़िक्र करनी पड़ती है, लिहाजा उनको आग से बचाव के तरीक़ेकार से वाक़फ़ियत हासिल करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। उन्होंने आग पर कैसे काबू पाया जाए और कैसे तहफ़्फ़ुज़ हासिल किया जाए तफसील से बताया। इस प्रोग्राम में CRPF के सर्कल इंस्पेक्टर सरोज कुमार के अलावा दीगर शरीक थे। తర్వాత ఇక్కడున్న ప్యాసింజర్కి కూడా మనం అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం అయింది. ఇక్కడ మనం ఏం చేసినామంటే ఫైర్ అయితే అంటే ఎన్ని రకాలుగా ఫైర్లు ఉంటాయి, ఫైర్ అయితే ఎలా రెస్పాండ్ కావాలి, ఇంకోటి ఏంటంటే తర్వాత రెస్క్యూ మెథడ్స్ ఎలా ఉంటాయి, 1 మ్యాన్ రెస్క్యూ మెథడ్స్ ఏంటి, 2 మ్యాన్ రెస్క్యూ మెథడ్స్. మనం ఎప్పుడైనా ఫైర్ అయినప్పుడు మనం మనుషులను కాపాడిన తర్వాతనే మనం ఫైర్ ఫైటింగ్ చేస్తాం. అందుకని చెప్పేసి మన రెస్క్యూ మెథడ్స్ కూడా మనం इदरीस खान ग्राउंड में शॉर्ट बाउंड्री क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद सनाउल्लाह खान ने इफ्तिताह अंजाम दिया और कहा कि खेल महज शौक नहीं है, बेशुमार खिलाड़ियों ने खेलों से इज्जत, दौलत और शोहरत हासिल की है। आप भी कर सकते हैं, शर्त है कि मेहनत व जद्दोजहद और अज़्म व इस्तक़लाल से काम लिया जाए। इदरीस खान ग्राउंड रूबरू फिश फार्म पर GIS कंस्ट्रक्शन शॉर्ट बाउंड्री क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में आया। इस टूर्नामेंट में मुख्तलिफ टीमें हिस्सा ले रही है। टूर्नामेंट का इफ्तिताह जवां साल समाजी व सियासी कायद सनाउल्लाह खान ने किया। उन्होंने टॉस किया और खिलाड़ियों से मुलाकात करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। सनाउल्लाह खान ने इस टूर्नामेंट के मुंतज़मीन जिया, छोटू और आमिर की सताइश करते हुए टूर्नामेंट के इनेकाद पर मुबारकबाद दी और कहा कि खेल सिर्फ तफरीह का जरिया ही नहीं है, दौरे हाजिर में खेल तरक्की की राहों को खोल देता है। मुल्क में कई खिलाड़ियों ने अपने बेहतरीन खेलों का मुजाहरा पेश करते हुए अपनी शख्सियत का लोहा मनवा लिया और तरक्की की शानदार मंजिलों को तय करते हुए इज्जत, दौलत और शोहरत हासिल की। उन्होंने नौजवान खिलाड़ियों से ख्वाहिश की कि वो महज शौक के खातिर ही खेलों में हिस्सा ना लें, बल्कि इस खेल से अगर आपको महारत महसूस हो रही हो तो उसमें संजीदा कोशिश करें और कोचिंग हासिल करते हुए नुमाया मुकाम के हुसूल के लिए जद्दोजहद करें। उन्होंने कहा कि मेहनत और जद्दोजहद ही कामयाबी का अवलिन जीना है, लिहाजा नौजवान खिलाड़ी मुसाबकत में न घबराएं और खेलों में महारत हासिल करें। उन्होंने इस मौके पर जिले के बेशुमार खिलाड़ियों का हवाला दिया जिन्होंने अपने खेलों में नाम, इज्जत, शोहरत और इनामात हासिल किए हैं। इस मौके पर नौजवान खिलाड़ियों और मेहमानों की बड़ी तादाद शरीक थी। मुंतज़मीन ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस प्रोग्राम के इनॉग्रेशन मैच के दिन मुझे यहाँ पर इनवाइट किया और कई सारे लोग रहते कि इनॉग्रेशन के जो है अलग अलग तकारीब करते, कोई डीजे लगाता, कोई जो है ना ख्वाहिशात को फ़रोग़ करता। इस तरह की स्पोर्ट एक्टिविटीज़ जो है नौजवानों के अंदर एक अलग से जो है इम्प्रेशन डालती और उनको जो है ना बार बार ये चीज़ के लिए उभारती, क्योंकि ये दो चीज़ें हैं, एक हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी है, एट द सेम टाइम नौजवानों के अंदर स्पोर्ट्स के तरफ जो है इंस्पायर होने का एक अलग रास्ता भी है। तो इस तरह के इनॉग्रेशन प्रोग्राम अगर रहें तो नौजवान जो है बिल्कुल आगे बढ़ कर काम करते हैं और अपनी काबिलियत बताने का मौका भी मिलता है। तो इस तरह के प्रोग्राम करने के लिए मैं काबिल मुबारकबाद है हमारे डायरेक्टर साहब, और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे प्रोग्राम करेंगे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। GIS कंस्ट्रक्शन की तरफ से टूर्नामेंट हो रहा है, शॉर्ट बाउंड्री टूर्नामेंट है। ये क्रिकेट शायकीन के लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत दिन से निज़ामाबाद में शॉर्ट बाउंड्री टूर्नामेंट्स नहीं चल रहे थे। अब एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है जिसमें तकरीबन 30 से 35 टीमों का इन्वॉल्वमेंट है। विनिंग प्राइस 15 और रनर प्राइस 8000 है। ओवरऑल एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट होने जा रहा है। कई छोटे मोजाजात को ग्राम पंचायत की हैसियत से तरक्की दी गई, मगर अब तक कोई ओहदेदार वहां नहीं पहुंचा।
जिस की वजह से हर तरफ गंदगी, ताफुन और पीने के पानी में आलूदगी है। एड़पल्ली मंडल के बापूनगर और थाना कलान की अवाम की शिकायत। एड़पल्ली मंडल के मौजा बापूनगर में गंदगी व ताफुन में इजाफा होता जा रहा है और इसकी सफाई पर कोई तवज्जो मरकूज नहीं की जा रही है। अदम सफाई की वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और सेहत आमा को भी खतरा लाहक हो रहा है। इस मौजा को ग्राम पंचायत की हैसियत से तरक्की दी गई है, मगर अब तक किसी ओहदेदार ने यहाँ का रुख नहीं किया, जिस पर अवाम बरहमी का शिकार है। थाना कलान मौजा भी ग्राम पंचायत बनने के बाद उसी सूरत हाल से दो चार है। गंदगी व ताफुन के अलावा पीने के पानी में आलूदगी से अवाम तशवीश का शिकार है और आला हुकाम से तवज्जो देने का मुतालबा कर रही है। మలేరియా జ్వరాలు వస్తున్నాయి. మా అబ్బాయికి కూడా నిన్న జ్వరం వచ్చింది. మలేరియా అని తెలిసింది. జీవాంతరావు దగ్గర చూపించినాం మేము. మరి మలేరియా అంటున్నారు. చిన్నపిల్లలకు కూడా బాగా జ్వరాలు వస్తున్నాయి. మంచి వాటరు, మంచిగా నల్లలు అవి అన్నీ మంచిగా సమస్య ఉంది. ఇదివరకు మా గ్రామానికి తానకలం గ్రామ పంచాయతీ అటాచ్మెంట్ ఆమ్లెట్ గ్రామంగా ఉండేది. మాకు ఈ మధ్యాహ్నం గ్రామ పంచాయతీ సపరేట్గా ఏర్పడింది. మా గ్రామ పంచాయతీ ఒక అధికారిని నియమించినా సరే వాళ్ళు మా సమస్యలను పరిష్కరించలేరు. आज की तेज व मुख्तसर खबरें। इंदलवाई मंडल में बाजरेड्डी जगन ने इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने मंडल की आवाम से अपील की कि वो कार को ही वोट दे। उसके बाद उन्होंने कहा कि बाजरेड्डी गोवर्धन ने रूरल हलकों में बेशुमार तरक्याती काम अंजाम दिए और मजीद कामों और तरक्की के लिए TRS को ही वोट देने का इजहार किया और TRS के दौरे इख्तिदार में ही अधूरे छोड़ दिए गए तानों को ग्राम पंचायत में तब्दील किया गया, जिससे और तरक्की होगी और बहुत से तरक्याती कामों की तकमील हुई है, जिसकी माजी में नज़ीर नहीं मिलती। शहर के फुलांग चौरस्ते के पास यादगिरी बाग में प्राइवेट स्कूल इंतजामिया ने अपने जमीन से मुतासिल म्यूनसिपैलिटी की 33 फुट रोड के मुतासिल फुलांग की नाल पर कब्जा किए जाने का कॉलोनी के अवाम ने इल्जाम आयद किया। इससे कबल भी कॉलोनी के अवाम ने कई बार ओहदेदारों से नुमाइंदगी की थी, मगर कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ, जिस पर कॉलोनी के अवाम ने बरहमी का इजहार किया और कहा कि स्कूल इंतजामिया मनमानी तरीके से अपना काम अंजाम दे रहा है। आला ओहदेदार इस स्कूल इंतजामिया पर इक़दामात ले और ठोस कार्रवाई करे। इख्तिताम से कबल नजर डालते हेडलाइंस पर। अक़लियती अक़ामती स्कूल अक़लियतों के लिए शानदार तोहफा, इससे इस्तेफादा करें, जिला कलेक्टर का मशवरा। उन्होंने साइंस फेयर प्रोग्राम का किया इफ्तिताह। पुलिस की चौकसी, कई मुकामात पर चेक पोस्ट। नसरुल्लाबाद में पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के काफिले की तलाशी, पुलिस के रवैये की जबरदस्त सताइश। रियासती TRS हुकूमत ने अक़लियतों के लिए जो काम किए हैं उसकी माजी में नज़ीर नहीं मिलती। इनकलाबी स्कीमात को रोशनास करवाया गया। अक़लियतों के इजलास से बाजरेड्डी गोवर्धन व दिगर का खिताब। क्या आवाम को बर वक्त सर्टिफिकेट्स व दिगर सहूलतें मिल रही है? साउथ तहसील ऑफिस में अमले से जिला कलेक्टर का सवाल। उन्होंने रिकॉर्ड्स का लिया जायजा। खबलाजी पोलिंग मराकज का मुआयना भी किया। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।